next session, we will try to study about more on lines and angles. Lines और angles में और क्या क्या चीजें हैं वो rest of the theorems or some concept we will discuss here, and then we will try some example questions. Okay. So first of all, I am telling you what is the parallel lines. So what is the parallel lines? Parallel lines. Okay. Now what are the parallel lines? Parallel lines are the lines in a plane. Always remember, parallel line are the lines in a plane. एक ही प्लेन में होती है, which do not intersect. इसके पहले भी आप छोटी क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं. You have already studied in the small classes. Okay. So parallel lines are those lines which in a plane which do not intersect. दो कंडीशन होनी चाहिए पैरेलल लाइंस के लिए. पहले both the lines will be in a plane, and second is which do not intersect. So these are the parallel lines. Okay. Now second is transversal. Transversal is a line which intersects two or more lines. Suppose this is a line, maybe they are parallel or not, and this is the line which intersect these two lines or three lines, you can say, in distinct point P, Q, R. These are the three lines L, M, N, which are parallel and not parallel. It is not defined here, but this line T is intersecting the line at L at P, the line M at P, Q, and line N at R. So this line is called transversal. तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? ट्रांसवर्सल है. ठीक है. So parallel line are the lines which in a plane, two or more lines in a plane which do not intersect are called parallel line to each other. Okay. Or two lines in a plane which do not intersect on producing both the sides are called parallel line to each other. Okay. And the transversal is a line which intersect two or more lines in a plane at distinct points. Distinct मतलब different points पर intersect करते. ठीक है. इतना समझ में आ गया? Axioms we are going to study when two parallel lines are intersected by a transversal. Some angles are formed. उनको हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं. ठीक है. फर्स्ट नंबर, corresponding angle. Suppose these are the two parallel lines and the transversal, this is the parallel line A and B, and this line is C and D, and this line is PQ, and intersecting at point E and F. ओके. सो यहां पर आप देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें. करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जैसा एंगल पहली लाइन पर वैसे ही एंगल दूसरी लाइन पर. ओके. सो अगर हम ये एंगल की बात करें, ये एंगल मान लीजिए 1 है, तो ये एंगल लाइन के ऊपर AB के अबव द AB एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो बिल्कुल वैसे ही यहां पर देखेंगे CD के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट पर. तो ये हो गया आपका एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल. सिमिलरली दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल, एंड एंगल नंबर 3 and 4, एंगल 5 इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल 6. ये देखिए ये एंगल लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्सल के राइट में है. यहां भी एंगल लाइन के नीचे है और राइट में है. ठीक है. तो ये एंगल हो गया आपका इसका करस्पॉन्डिंग. इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया. अब ये देखिए ये जो एंगल है 3, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड अबव द लाइन AB. Similarly,
ये देखिए एंगल 4, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द राइट, ये ट्रांसवर्सल एंड अबव द साइड लाइन ए। सो ये इसका करस्पॉन्डिंग हो गया। Similarly, this angle is 7 and this angle is 8. So angle 7 क्या है, नीचे है AB के और लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, इसमें भी CD के नीचे है और लेफ्ट साइड। So corresponding angle when two parallel lines are intersected by a transversal, then corresponding angles are equal. So angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4. Angle 5 is equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8. These are the numbers of angle, not 1 is equal to 2 or 3 is equal to 4. These are the numbers of the corresponding angles. So pair of corresponding angles are equal when two parallel lines are intersected by a transversal. Okay, समझ में आ गया? Now student, next is alternate interior angles. What are the alternate interior angles? Alternate का मतलब होता है अगर एक एंगल ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा, alternate, और एक अगर बाय साइड में तो दूसरा दाईं साइड में, ट्रांसवर्सल के। और इंटीरियर का मतलब है दोनों लाइंस के बीच में, अंदर दोनों लाइंस के बीच में, तो उसका इंटीरियर एंगल। So if two parallel lines are intersected by a transversal, then pair of alternate angles are also, alternate interior angles are also equal. So this is the line AB and this line is CD and transversal is PQ. So alternate interior angles, यहाँ पे आपको दो पेयर दिखाई देंगे। एक alternate interior angle यहाँ पर होगा एंगल 1 is equal to, सपोज ये एंगल 2 है और ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल 4। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऑल्टरनेट का मतलब ये देखिए, ये वाला एंगल है ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में और ऊपर है, तो उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के राइट साइड में होगा और नीचे होगा, लाइन के नीचे नहीं, इसको बीच में ही होंगे। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब होता है दोनों लाइंस के बीच में, तो ये पेयर जो होगा वो दोनों लाइंस के बीच में ही होगा ऑलवेज। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 and angle 2 is equal to angle 4. These are the alternate interior angles. समझ में आ गया? When two parallel lines are intersected by transversal, then the pair of alternate interior angles are equal. Now let's do next is co-interior angles or interior angles on the same sides of the transversal. ट्रांसवर्सल के सेम साइड और दोनों इंटीरियर एंगल्स, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, देन सपोज ये है आपका AB, लाइन AB एंड दिस इज द लाइन CD एंड दिस इज PQ। सो को इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? एक तो इंटीरियर एंगल्स मतलब यहां ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, और कोई इंटीरियर होते हैं एक ही साइड, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, मतलब ये एंगल 1 और सपोज ये एंगल को मैंने लिखा 2, इसको लिखा एंगल 3 और इसको लिखा एंगल 4। सो ये जो दो पेयर है, ये वाला जो पेयर होगा सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज, डू नॉट बी कंफ्यूज विद लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, लेकिन यहाँ एडजेसेंट नहीं है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, दोनों अलग अलग है, दोनों के वर्टेक्स अलग है, एक साइड कॉमन है, बट ये दोनों उसके अलग अलग नहीं है। सो दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। Similarly, angle 2 plus angle 4 also equal to 180 degree. So third thing we must remember that when two parallel lines are intersected by a transversal, the co-interior angles are supplementary. ये दोनों का सम 180 होगा
और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल जो कि आपने पहले ही पढ़ा है, ट्राइंगल्स के इंटरनल एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्रीज होता है। The sum of the interior angles of a triangle is always 180 degree, and this is called angle sum property of a triangle. Suppose ये एक triangle है, any triangle, not specified which type of triangle is there. This is A, B, C, and we have to prove that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. So for which we must draw a parallel line through A parallel to BC, a line drawn PQ parallel to BC. Suppose this angle is 5 and this angle is 4. Okay, now PQ is parallel to BC and AB is transversal. ठीक है, मैं केवल ट्रांस लिखता हूं, आगे जगह नहीं है, ट्रांसवर्सल. ओके, therefore angle 5 is equal to angle 2, that is alternate interior angles. Short form लिख रहा हूं. Again, PQ is parallel to BC and AC is the transversal. Therefore, angle 4 is equal to angle 3. Alternate interior angles. ये देखिए, इसको अगर हम थोड़ा बढ़ा दें आगे, ऐसे इसको आगे ऐसे बढ़ा दें, तो ऐसे करते हैं. ये पैरेलल लाइंस, ये देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये और ये ट्रांसवर्सल है ऐसा. तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 ऐसे. ठीक है. नाउ PAQ is a line. Therefore, angle 5 plus angle 1 plus angle 4 is equal to 180 degree. Now you can write linear pair axiom. This is the linear pair. ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा. ये स्ट्रेट लाइन है PAQ, इसलिए ये स्ट्रेट एंगल होगा. सो एंगल 5 की जगह पे मैंने लिखा एंगल 2, क्योंकि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 है, प्लस एंगल 1 एज इट इज. एंगल 4 की जगह मैं लिखूंगा एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. हेंस प्रूव तीनों एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. स्टूडेंट, एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. इफ a side of a triangle is produced, then exterior angle so formed is equal to the sum of the interior opposite angles. ठीक है. सो अगर ये कोई एक ट्रायंगल है, इसकी किसी भी साइड को सपोज मैंने इसे बढ़ा दिया इधर, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है, ये वाले एंगल को छोड़ दीजिए आप, तो इसके और इसके सम के बराबर होता है. मतलब ये एंगल 1 है और ये एंगल मान लीजिए A है और ये B है, तो एंगल 1 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B. दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. ये जो है ना, ये एक्सटीरियर एंगल. अब सपोज अगर मैंने इसको बढ़ा दिया आगे, इधर बढ़ा, और ये वाला एंगल C है, ठीक है, तो ये जो एंगल बना, ये एक्सटीरियर एंगल का है, और इस एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए इस एंगल को 2 लिख रहा हूं, तो ये एंगल छोड़ना पड़ेगा इस केस में. इंटीरियर अपोजिट ये हो जाएंगे. सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल B. सो दिस इज एंगल एक्सटीरियर एंगल 2. ये इंटीरियर अपोजिट होंगे. ये इसके जस्ट बगल वाला जो एडजेसेंट एंगल है उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी जो दो बचे हुए हैं, दोज एंगल्स आर कॉल्ड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स.
So when a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the interior opposite angles. Okay, इसको भी देख लेते हैं, प्रूव करके देख लेते हैं. Now students, see this the proof of exterior angle property. This is a triangle and side BC is produced to D such that this angle is formed X. X is the exterior angle. Okay. Now we have to prove that angle X is equal to angle A plus angle B. Okay. Let this angle is C. अब आप देखिए, बहुत सिंपल है. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. This is what? Angle sum property of a triangle. Triangles के internal angles का sum 180 degree होता है. And BCD is a line. So angle C plus angle X is equal to 180 degrees. Now this is equation number 1 and this is equation number 2. Now by equating these two equations, because the right hand sides are equal, so left hand side must be equal. So angle C plus angle X is equal to angle A plus angle B plus angle C. So angle C is gone, is equal to दोनों साइड में पॉजिटिव भी है. Therefore you can get angle X is equal to angle A plus angle B. So this is exterior angle X is equal to the sum of the interior opposite angles. ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये इसका यूज होगा क्वेश्चंस में. ठीक है. Now students, see some example questions based on alternate interior angle, corresponding angles and co-interior angles, angle sum property and exterior angle property. Okay. So first question, in the figure AB is parallel to DE. I will give you the PDF. Okay. If AB is parallel to DE, then find the angle ACD. The figure is given like this. Question number 1. This is AB, sorry, यहाँ B है, यहाँ पर A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे ACD पूछ रहा है ना, हाँ D है और यहाँ पर E है. It is given that AB is parallel to DE, तो एंगल ACD आपको फाइंड आउट करना है. दिस एंगल, ये वाला है, ये दोनों पैरेलल हैं. ओके. सो व्हाट यू विल डू नाउ, इसमें ये भी दिया हुआ है, ये वाला एंगल 100 डिग्री का है, सॉरी 110 डिग्री का, और ये वाला एंगल 150 डिग्री का. सो फॉर दिस, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन क्या करेंगे अपन, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे. थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB. सपोज मैंने ये PQ लाइन ड्रॉ की जो AB के पैरेलल है, तो अगर PQ is parallel to AB, therefore PQ is also parallel to DE. ठीक है. अगर ये दोनों पैरेलल है और ये पैरेलल लाइन है इसके, तो ये भी तीनों पैरेलल होंगे. ठीक है, तो ये पैरेलल हो गए. अब सपोज दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 2. Now AB is parallel to PQ and AC is the transversal. ये देखिए, ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल इसके और ये ट्रांसवर्सल. तो ये और ये का सम 180 डिग्री होगा. इसमें लिखेंगे AC is transversal. Therefore angle 1 plus 110 degree is equal to 180 degree.
को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो ये वहां जाके माइनस करेंगे तो एंगल 1 आ जाएगा आपका 70 डिग्री। सिमिलरली PQ इज पैरेलल टू DE, PQ is parallel to DE and CD is the transversal, मैं इतना ही लिख दे रहा हूं यहां पे। Therefore angle 2 plus 150 degree is equal to 180 degree। ये देखिए दोनों पैरेलल लाइंस है और ये देखिए ये ट्रांसवर्सल है। इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर दीजिए, ये देखिए ये Z बन रहा है, तो Z के दोनों इस तरफ वाले जो एंगल्स होते हैं इनका सम 180 होता है। तो एंगल 2 इस केस में एंगल 2 आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ये यहां जाके माइनस कर देंगे 30। अब ये पूरा एंगल जो है ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। देयरफॉर ये हो गया आपका 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री, सॉरी 100, 100 डिग्री का होगा। Now students see two questions 1 and 2. These are the two questions. Question number, this is question number 3, 2 and 3. In this question AB is parallel to ED and this angle is given 110 and this angle is 150 and you have to find out the angles ACD, मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। For finding this angle हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू C पैरेलल टू AB PQ। This line is parallel to AB। अगर ये AB के पैरेलल है तो ये CD ED के भी पैरेलल होगी, ठीक है। सो अगर PQ is parallel to AB, therefore PQ is also parallel to CD because AB is parallel to C। Now let this angle is 1 and this angle is 2। now देखिए ये लाइन पैरेलल है इसके, AB is parallel to CD PQ and AC is the transversal, AC is the transversal। Therefore angle 1 plus 110 degree is equal to 180 degree। को इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। अगेन PQ is parallel to ED and CD is the transversal, CD is the transversal। Therefore angle 2 plus 150 degree is equal to 180 degree। इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो एंगल 2 आपका आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 30 डिग्री का। अब इन दोनों का सम ACD है, therefore angle ACD is equal to 100 डिग्री, क्योंकि एंगल 170 का है, एंगल 2 30 डिग्री का है, ठीक है। आपको समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखिए, यहाँ पर AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and RS is the transversal। This angle is given 75 degree, this is 20 degree, this is 25। ये Y और X आपको फाइंड आउट करना है, एंगल X एंड एंगल Y आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट, ठीक है। तो देखिए क्या करना होगा, इसमें मैं यहां से X को बिठा रहा हूं, सेम यहां से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए AB के पैरेलल, इसका नाम भी मैंने PQ लिखा, ठीक है। और ये ऊपर वाला एंगल 1 है, ये एंगल 2, ठीक है। अब जरा देखिए, आप आसानी से देख सकते हैं, AB is parallel to CD and RS is the transversal। मैं केवल T लिख दे रहा हूं ट्रांसवर्सल के लिए, ओके। तो ये 75 और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, देखिए ये पैरेलल लाइंस है
और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 75 डिग्री ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल यहाँ से ये बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 25 प्लस y इज इक्वल टू 75, देयरफॉर y इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब देखिए ये पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 और एंगल y बराबर होंगे, मतलब PQ is parallel to CD and GF is the transversal. Therefore, angle Y is equal to angle 2 is equal to 50 degree because angle 2 जो है वो angle Y जो है 50 डिग्री का और angle 1 कितना होगा, ये 20 डिग्री का होगा। क्यों? ये पैरेलल है इसके और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, सेट बन रहे एंगल 20 डिग्री एंड एंगल 1 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो आपका एंगल x होगा वो एंगल 1 एंगल 2 को कितना हो जाएगा 70 डिग्रीज। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट डाउन ऑल द थिंग्स। ओके, किस तरीके से लिखना है मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ स्टूडेंट्स सी इन दिस क्वेश्चन number 4, AB is parallel to CD. This angle is given 130 degree and this angle is 20 degree and you have to find out angle x here. Okay, so for this we will use only the alternate interior angles and exterior angle property. Okay, see, for solving this question I am producing this BA to P and EC to Q and this point is R. See, in this triangle, ERC, let this angle is 1. ठीक है? So in triangle CRE, exterior angle ECE is equal to angle 1 plus angle E. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये देखिए, इस ट्रायंगल की ये साइड को प्रोड्यूस किया गया तो ये एंगल इसके सम के बराबर होगा, ये वाला एंगल छोड़ के। ठीक है, तो ये है आपका 130 डिग्री, एंगल 1 you have to find out and this angle is 20 डिग्री, therefore angle 1 के 20 माइनस होगा, एंगल 1 आएगा 110 डिग्री। ठीक, अब एंगल 1, अब देखिए BP एंड PP is parallel to DQ and AE is the transversal and AE is the transversal. Therefore, angle 1 is equal to angle X. ये देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ से देखिए ध्यान से, ये वाला पैरेलल इसके, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। ये देखिए मैं बना रहा हूँ फिर से, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये एंगल 1 है, ये एंगल x है। दिस फिगर, सो देयरफोर एंगल x is equal to 110 degrees. That's all. Next question. In this question, AB is parallel to CD. This angle is given 100. This angle is given 40 degree, and this is you have to find out angle x. So, for this question, we will draw. इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक लाइन यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर दें तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, वो आपको मैं पीडीएफ में भेजूंगा। और मैं यहाँ पर दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर I will draw a line parallel to AB through E. Through E, I have drawn a line parallel to AB, so that it will parallel to CD also. Okay, क्योंकि सेम लाइन है, इसके पैरेलल है तो सिमिलरली इसके पैरेलल भी हो। Okay, now यहाँ पे देखिए CD is parallel to EQ and CE is the transversal.
is the transversal. Therefore angle, this angle I am writing x, sorry x नहीं 1 लिख देते हैं और ये एंगल लिख देते, सॉरी 1 से ही काम चल जाएगा, एंगल 1. So angle 1 plus 100 degree is equal to 180 degree. Co-interior angles, angles on the same side of the transversal. देखिए ये एक पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल डिग्री. तो इन दोनों एंगल्स का सम, एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. इसको माइनस करने के बाद तो एंगल 1 आ जाएगा आपका 80 डिग्री का. अब जरा देखिए ए बी पैरेलल है पी के और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नाउ ए बी इज पैरेलल टू PE and BE is the transversal. ठीक है. Therefore angle X is equal to angle 40 degree plus angle 1 and angle 1 is equal to 80 degree है. Therefore angle X is equal to कितना हो जाएगा 40 degree plus 80 degree. Therefore angle X will be 120 degrees. Okay, simple. समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा. Now students, see in this question, line L is parallel to line M, and you have to find out this angle is 120 degree, this angle is 100 degree. This is, you have to find out angle X, Y, and Z. These three angles you have to find out. These two angles are given, and it is also given that L is parallel to M. Okay. Now what you should do now? देखिए ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल डिग्री, तो इन दोनों का सम 180 होगा. सो L इज पैरेलल टू M एंड CB इज ट्रांसवर्सल. Therefore angle Y plus 100 degree is equal to 180 degree. Co-interior angles, angles on the same side of the transversal. Interior angles on the same side of the transversal. Okay, so angle Y is equal to 80 degrees. एक आ गया. दूसरा यहां पर भी सिमिलरली ये देखिए ये लाइन पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल, तो इसका सम भी 180 डिग्री होगा. So 120 degree plus angle Z is equal to 180 degree. Co-interior angles और angle interior angles on the same side of the transversal. So इसको माइनस करेंगे, so angle Z जो आएगा वो आएगा 60 degrees. करेक्ट है. अब देखिए ये एक लाइन है, तो इन दोनों का सम, इन तीनों का सम एंगल Z प्लस एंगल X प्लस एंगल Y is equal to 180 degree. That is linear pair axiom. So angle Z आपको पता है 60 डिग्री का है, एंगल X आपको फाइंड आउट करना है, एंगल Y आपका 80 डिग्री का है, तीनों का सम 180 डिग्री है. तो एंगल X हो गया ये 80, 60, 140. माइनस करेंगे वाले आके तो आएगा आंसर 40 डिग्री. So angle X will be 40 degree, angle Y is equal to 80 and angle Z is equal to 60 degrees. करेक्ट. समझ में आ गया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे. आपके टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस होंगे, बाकी ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने होंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.